Hello students, welcome back to your video classes. Today we will do our rest of the chapter Indian Scientists Biography and Achievement. Okay students, so in the first video we are talk about the Dr. Homi Jahangir Bhabha, Dr. Prabhula Chandra Ray and C.V. Raman, Chark and Shushrut. Okay, in this video we are talk about the three most important scientists, Dr. Panchanan Maharshi and Dr. Salim Ali, Dr. APJ Abdul Kalam. Okay, so let's start from the Dr. Panchanan Maheshwari. Okay, Dr. Panchanan Maheshwari was the Indian botanist. ये क्या था, एक botanist से. He was born on November 9, 1904. ये कब इसका इनका बर्थ कब हुआ था? नवंबर 1999 में, 94 में सॉरी. ओके, देन उसके बाद और ये कहाँ पे हुआ था? जयपुर में. ही स्टडी एट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंड स्टार्टेड टीचिंग एट आगरा कॉलेज. इन्होंने इलाहाबाद से स्टडी किया था और आगरा की कॉलेज में वहाँ पे टीचिंग करना स्टार्ट किया था. आफ्टरवर्ड्स ही taught in Allahabad, Lucknow, Dhaka universities. In 1948 he joined Delhi University. He head of botany department. इन्होंने 1948 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था और ये बॉटनी डिपार्टमेंट के हेड थे. His research contribution was a plant embryology. इन्होंने प्लांट के जो एम्ब्रियोलॉजी के बारे में स्टडी किया था. He developed a new branch by mixing embryology and tissue culture. इन्होंने एक न्यू डेवलप किया. कौन सा ब्रांच मिक्सिंग किया? एम्ब्रियोलॉजी और टिश्यू को मिक्स करके इन्होंने एक न्यू ब्रांच बनाया. ही डेवलप टेक्निक टू प्रोवाइड आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर ऑफ फॉर देयर डेवलपमेंट. इन्होंने आर्टिफिशियली कैसे उनको डेवलप कर सकते हैं ये इन्होंने अपना डेवलप किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया. हिज स्टूडेंट्स वर फ्रॉम अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया एंड अदर कंट्रीज. इनके स्टूडेंट्स अदर कंट्री के भी थे, इंडियन स्टूडेंट्स तो साथ में थे, अदर कंट्री के भी स्टूडेंट्स थे. अराउंड 60 स्टूडेंट डिड डॉक्टर्स अंडर हिज सुपरविजन. इनके अंडर में 60 स्टूडेंट ऐसे थे जो डॉक्टर बने. Dr. Maheshwari represented India in many international conference. इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया. बहुत सारी जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती थी उनमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया बॉटनी में. He developed Center for the Tissue Culture and Embryology and the Homer. His research was elected Fellow Royal Society in 1965 में. He died in May 1966 में. इनकी क्या हो गई? डेथ हो गई. 18 मई 1966 में इनकी क्या हो गई? डेथ हो गई. देन नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है वो है डॉक्टर सलीम अली. डॉक्टर सलीम अली वॉज द बोर्न नवंबर 12, 1896. नवंबर 12, 1896 इनका बर्थ हुआ डॉक्टर सलीम अली का. सुलेमानी मुस्लिम फैमिली. ये क्या है? सुलेमानी मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे. ही वॉज एन इंडियन ऑर्गेनोबायोलॉजिस्ट एंड न्यूट्रलाइज्ड. ही ऑल्सो रेफर्ड टू एज ए बर्डमैन. इनको बर्ड नेम से भी जानते हैं ऑफ इंडिया. He was the first person who systematically conducted surveys on the birds all around India. His book on Indian bird helped to the popularizing ornithology in India. In 1976, he was awarded the Padma Vibhushan and second highest civilian honor of India. इनको पद्म विभूषण और सेकंड हाईएस्ट सिविलियन से अवार्ड भी मिला था.
After 1947, he became the main person behind the Bombay Natural History Society. He used his personal influence for the getting government support for the organization. He was also instrumental creating भरतपुर बर्ड सेंचुरी. इनको बर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अच्छी थी और इन्होंने भरतपुर बर्ड सेंचुरी में भी जो केवलादेव नेशनल पार्क है वो he worked hard to stop the construction of dam that was a threat of Silent Valley National Park. Under the guidance of the Secretary Bombay National History Society W.S. Millard, Salim started studying in the bird toughly and identified the unusual sparrow that had shot and spot with his toy air gun. Millard identified as the yellow-throated sparrow and they showed the Salim of collection stuffed bird on the collection of society. He gave a few books of start collecting bird and one of the book was the common bird of Mumbai. इन्होंने एक जो बहुत सारी बुक्स लिखी उनमें से जो कॉमन थी वो है बर्ड ऑफ मुंबई. In his autobiography The Fall of a Sparrow, Salim writes that event of the yellow-throated sparrow was a life-changing event for him because this event is into ऑर्टिनोलॉजी. यानी ऑर्टिनोलॉजी से जब भी कोई इवेंट होता था तो सलीम अली वहाँ पर क्या था उनको अटेंड करते थे. उनकी द फेल ऑफ स्पैरो वहाँ पे पब्लिश हुई थी. प्राइमरी एजुकेशन ऑफ द सलीम अली टुक प्लेस इन द बॉम्बे में इनकी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट हुई थी. लेटर ऑन ही वेंट टू द एक्सवीवियर कॉलेज बॉम्बे. ही डिसाइडेड टू टेक अप द जॉब ऑफ द गाइड टू द लेक्चरर इन द प्रिंस ऑफ वॉल्स म्यूजियम फॉर द 350. यानी इन्होंने 350 रेस में इन्होंने क्या किया था, स्टार्ट किया था अपना करियर. Was not having the formal university degree and then decided to continue to his study. इन्होंने इनके पास कोई डिग्री नहीं थी. देन उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपनी डिग्री को कंप्लीट करूंगा. He was awarded honor doctor by the अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1958 में. इनको डॉक्टर की उपाधि मिली 1958 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से. दिल्ली यूनिवर्सिटी 1973 एंड आंध्र यूनिवर्सिटी 1978. He died in 1987 में. After prolonged cancer of the prostate at the age 91. इनकी एज कितनी थी? 91. इनकी डेथ किस रीजन से हुई? कैंसर के रीजन से. सलीम अली द सेंटर ऑफ द ऑर्टिनोलॉजी एंड द नेचुरल हिस्ट्री. देन नेक्स्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. डॉक्टर Abul Pakir Jainul-Abidin Abdul Kalam was born on October 15, 1931. October 15, 1931. APJ, full form of APJ Abul Pakir Jainul-Abidin Abdul Kalam. In the Dhanushkodi town of the Rameshwar district of Tamil Nadu. Tamil Nadu में इनका बर्थ हुआ था. His father was Jainul-Abidin and mother was Ashima. His elementary education was Rameshwari and his high school he went to the nearby town Ramanpuram and Squared Higher School secondary school to study science. इन्होंने क्या किया वहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल में वहाँ पे स्टडी किया था. अयोध्या सोलोमन वॉज हिज सोर्स ऑफ द इंस्पायरेशन. यानी वहां से वो सेकेंडरी स्कूल से वहां से उनको इंस्पायर हुए. वहां से कलाम मेड द 3 पॉइंट्स ऑफ टेकनिंग द सोलोमन एज द बेसिक ऑफ हिज लाइफ. यानी वहां से उन्होंने अपने 3 रूल्स बनाए.
इन द सोलोमन वर्ड्स विल पावर, फर्स्ट क्या वर्ड था, विल पावर, फेथ एंड थर्ड वन इज होप आर थ्री नेसेसरी पॉइंट्स फॉर द सक्सेसफुल लाइफ। अगर सक्सेसफुल लाइफ चाहिए तो ये थ्री वर्ड्स उन्होंने अपने लाइफ में पुट किए थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। वो कौन से थे, विल पावर, फेथ एंड होप। टेक्नोलॉजी टू स्टडी द एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इन 1958 Kalam was appointed senior scientist in the हावड़ा क्राफ्ट प्रोजेक्ट अंडर द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ वहाँ पे उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे उन्होंने एक प्रोजेक्ट था, वहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को वहाँ पर हेड बनाया। इन्फ्लुएंस बाय द कलाम, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क, प्रोफेसर एमजी मेनन took him to इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का हार्ड वर्क देखकर एमजी मेनन ने क्या किया, उनको वहाँ से जो इंडियन स्पेस रिसर्च है वहाँ पे लेकर चले गए, क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या थे, अपने वर्क बहुत हार्डली वर्क करते थे। 1962 में वो इंडियन स्पेस में चले गए। हिज गोल्डन पीरियड ऑफ द लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम देयर। जब वहाँ से वो इंडियन स्पेस रिसर्च में गए तो वहाँ से उनकी क्या हो गई, गोल्डन लाइफ, जो अच्छी लाइफ होती है वो स्टार्ट हो गई। वहाँ से लाइफ के बहुत बड़े उनको अचीवमेंट वहाँ से मिले। कलाम टुक द ट्रेनिंग टेक्निक ऑफ द लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट्स फ्रॉम द नासा एंड फर्स्ट रॉकेट नाइक अपाची was launched by the India from Thumba. He was the appointed project director of SLV project and under the direction SLV third, यानी इनको SLV थर्ड इनके ही अंडर में लॉन्च हुई थी। सक्सेसफुल डेवलप्ड रोहिणी सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट। रोहिणी सैटेलाइट ऑर्बिट में पुट हुई थी, वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ही अंडर में हुई थी। इन 1983 कलाम वाज अपॉइंटेड चीफ एग्जीक्यूटिव इंटीग्रेटेड गाइडेड massive development program IGMDP and he played very important part in the development and launching of Prithvi, Agni, Trishul, Nag and Akash मिसाइल। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइलें थी जिनको लॉन्च किया था। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश मिसाइल, ये अंडर द एपीजे अब्दुल कलाम के ही कंप्लीट हुआ था। ही वॉज प्रेजेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट एट द पोखरण एंड वॉज द चीफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर फॉर पोखरण सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट इन द 1998। न्यूक्लियर टेस्ट भी हुआ था, वहां पे ये क्या थे, चीफ थे। फॉर हिज इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ द मिसाइल्स इन इंडिया ही इज ऑल्सो नोन एज द मिसाइल मैन। यानी इनके अंडर में बहुत सारी मिसाइलें लॉन्च हुई थी जो इम्पोर्टेंट थी, इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। ओनली जुलाई 27, 2015 डॉक्टर कलाम डाइड ऑफ कार्डियक अरेस्ट। यानी इनकी डेथ कब हुई थी, जुलाई 27, 2015 इनकी डेथ हुई थी कार्डियक की प्रॉब्लम की वजह से। डिलीवरिंग द लेक्चर IIM शिलोंग में, इट वॉज अ ग्रेट सेटबैक नॉट ओनली द फॉर इंडिया बट फॉर द होल वर्ल्ड। ये बहुत दुख की बात है कि ऐसे साइंटिस्ट जो इंडियन अभी एट प्रेजेंट नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे वी हैव डन लेसन नंबर 18। ओके, thank you, have a nice day.